ڈائن، یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے آنکھوں کی اندھی تو تم تھی ہی، اب کیا زبان کا ذائقہ بھی چلا گیا ہے؟ یہ خربوزہ ہے۔ ستیاناس ہو زینی تیرا، یہ کدو تھا۔ ایسی بھی کیا کام چوری کہ کدو اور خربوزے کا فرق ہی نہ پتا چلے۔ ڈائن، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب کے دادا جان اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے بولے تھے۔ زوہا میں کہاں ہمت تھی کہ جواب دیتی، آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ اوف، بند کرو یہ دریا بہانے، میں بتاتی ہوں۔ وہ مجھے لگی تھی بھوک تو میں نے فریج سے خربوزہ نکالا تو زوہا کو یاد آیا کہ خربوزے کی خوشبو پر ڈائن دل و جان سے فدا ہوتی ہے۔ وہ اب کہانی سنانے لگی تو یاد آیا چٹکے سے پلٹی جس سے اس کی لمبی چوٹی لہرائی تھی۔ عمر اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے ابو، غضب خدا کا، دنیا میں آج کل بہت ہی فریب ہے۔ آپ اتنے معصوم اور سیدھے ہیں کہ ہر کوئی آپ کو داؤ لگا دیتا ہے۔ اب آج ہی کی بات ہے، ایسا کوئی بدمزہ خربوزہ لائے تھے آپ، شکر کریں امی نے کاٹ کر دادا جان کو نہیں دیا، ورنہ تو پتہ نہیں اس بار دادا جان ڈائننگ ٹیبل ہی الٹ دیتے۔ پہلے تو بس کپ دیوار پر مارا تھا، خیر اس کے لیے طاقت بھی چاہیے۔ زینی فرفر شروع تھی، وہ میں بتانا بھول گئی آپ لوگوں کو کہ زینی جب بولتی ہے تو پھر بس بولتی ہے، باقی سارے سینسز کام کرنا بند ہو جاتے ہیں اس کے۔ مگر بیٹا، ابو نے ہاتھ اٹھا کر بولنا چاہا تو زینی نے ان کی بات کاٹ دی۔ ابو، اگلی بار میں خود جاؤں گی پھل فروش کے آپ کے ساتھ، وہ ہاتھ ہلا کر بولی اور اب پھر سے پلٹ کر دادا جان کو دیکھنے لگی۔ مگر زونش، میں تو خربوزہ لایا ہی نہیں، ابو بولے تھے۔ اچھا تو پھر چچا لائے ہوں گے، ایسا بدمزہ بے ذائقہ خربوزہ زندگی میں نہیں کھایا میں نے۔ اس نے جھرجھری لی تھی، خربوزے کا ذائقہ زبان پر جو محسوس ہوا تھا۔ امی، آپ تو بڑی ہی فرما بردار بہو تھی، لیکن اس بار آپ کیسے بھول گئی دادی کا حکم کہ شام سے پہلے خربوزہ ختم کرنا؟ زونش ٹھوڈی پر انگلی رکھے تحیر سے بولی، گھر میں تو خربوزہ تھا ہی نہیں، تم نے کہاں سے کھایا؟ تائی کو حیرت ہوئی۔ امی تھا، رکیں میں دکھاتی ہوں۔ وہ بھاگ کر کچن میں گئی تو دروازے پر چوہے کی لاش ملی۔ اپنے ہنگامے میں اس بیچارے کو بنا کفن دفن ہی چھوڑ دیا۔ زینی اس کے پاس رکی اور تاثر سے سر ہلا کر بولی، یہ عمر ابراہیم شیطان کا چیلا میری اہمیت تو کھا ہی گیا تھا، مگر افسوس کہ تمہاری ویلیو بھی ختم کر گیا۔ اب بھلا کون برداشت کرتا تمہاری لاش یہاں پڑی رہے؟ زینی نے چھلکے اٹھائے، باؤل میں ڈالے اور آ گئی باہر۔ احمد بھائی، ذرا وہ شہید کے کفن دفن کا انتظام کریں، ہمارے گھر کا حصہ رہا ہے، وہ بھی ہمارے گھر کے چوہے کا جنازہ ہے، ذرا شان سے نکلے۔ وہ باہر آتی احمد سے بولی۔ اس کی بات پر احمد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ بدمزہ خربوزہ کھایا میں نے تو دل اوب گیا۔ ابھی وہ آگے بھی نہ جانے کیا گلفشانیاں کرتی کہ تائی اماں چیخی تھی، ارے آنکھوں کی اندھی تو تم تھی ہی، اب کیا زبان کا ذائقہ بھی چلا گیا ہے؟ یہ خربوزہ ہے۔ تائی نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی امی، اس نے معصومیت سے جواب دیا تو سب سے پہلا کہکا عمر اسماعیل کا تھا جو بلند ہوا، پھر دادا جان کا، اور پھر باقی سب کی دبی دبی ہنسی۔ مگر زینی اور زوہا ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ستیاناس ہو زینی تیرا، یہ کدو تھا۔ ایسی بھی کیا کام چوری کہ کدو اور خربوزے کا فرق ہی نہ پتا چلے؟ تائی نے صدمے سے کہا۔ صدمہ تو ان دونوں کو لگا تھا، منہ کھل گئے۔ امی، میں نے اسے کہا تھا کہ نہیں کھاتے، مگر یہ مجھے ڈائن کے ڈراوے دینے لگی۔ ستیاناس تو اس زوہا کا ہو، وہ زوہا کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ اللہ تجھے ہدایت دے زینی، تو نے ذلیل و رسوا ہی کروانا ہے اپنے بابا کو، اسی لیے کہتی ہوں کچن کا رخ کر لیا کر کبھی۔ تائی سر پیٹ کر رہ گئی۔ عمر اسماعیل کا کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا، اب وہ ہر وقت گھر پر پائے جاتے تھے، کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے۔ سب گھر والوں کی توجہ کا مرکز عمر بنا ہوا تھا اور لعن بیچاری زینی کو سہنی پڑ رہی تھی۔ حالانکہ اس بار غلطی سراسر عمر کی تھی، زینی نے تو بیچارے چوہے کو شہید کیا تھا۔ زینی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ دھیمے دھیمے چل کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ زینی، ایک کپ چائے بنا دو پلیز۔ وہ چہرے پر مسکینیت سجا کر بولا، میں چائے بناؤں؟ وہ بھی تمہارے لیے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو چائے بنائی تھی میں نے، جس کا رزلٹ تمہارا ٹنڈا کندھا ہے۔ زینی ٹھیکے انداز میں بولی تھی۔ پلیز زینی، التجائیہ انداز۔ زینی نے ریموٹ پٹک دیا اور کچن میں چائے کا پانی رکھا جب زوہا بھاگی بھاگی کچن میں آئی تھی۔ زینی، تمہاری آواز نکال کر باتیں بھگا رہا ہے ایسے تمہارے دوست ہیں،
वो ऊपर नीचे होती सांसों के साथ बोली थी। क्या? ज़ैनी चीखी और लॉन्च की तरफ भागी जहाँ वो टेलीफोन कान से लगाए बोल रहा था। यार तुम ये छोड़ो, ये बताओ कहीं कमिटेड तो नहीं हो? वो ज़ैनी की आवाज़ इतनी अच्छे से कॉपी करता था, बल्कि वो खानदान के हर बंदे की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल लेता था। ज़ैनी ने झाड़ू उठाई और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हंसी बिल्कुल जल तरंग सी है, असद मुस्कुराया। और बस फिर क्या था, ज़ैनी ने झाड़ू उसकी कमर पर मारी थी। जल तरंग, तुम्हारी टांगों से आज मैं बजाऊंगी। असद ठरकी इंसान, और फिर झाड़ू का वार टांगों पर। हाय ज़ैनी। असद के हाथ से टेलीफोन रिसीवर गिरा और वो दूसरी तरफ भागा था। अब हाल ये था कि वो आगे आगे और झाड़ू पकड़े ज़ैनी पीछे पीछे। ज़ैनी, तुम भी तो अपने मासूम भाई का ख्याल करो ना। वैसे तो कोई लड़की मुझे घास नहीं डालती, और जो मैं तुम्हारी आवाज में उनसे घास खाने लगता हूँ, तुम चुड़ैलों की तरह अपनी झाड़ू पर बैठकर नाजिल हो जाती हो। वो आगे आगे भागता बोल रहा था। उमर सोफे पर दराज था, मगर कुछ इस तरह की दूसरी तरफ से आने वाले का नजर ही नहीं आता कि यहाँ 6 फुट का मर्द बैठा है। असद जम मारकर सोफे पर कूदा था, जहाँ उमर अपना टूटा कंधा लिए बैठा था। एक चीख बुलंद हुई थी, फिर एक जोरदार लात असद के पेट में पड़ी थी, जिससे वो लड़खड़ाया था। तुम कहाँ सरमुंडे बैल की तरह चढ़े हो? उमर ने जोरदार लात दी थी उसे। ज़ैनी जब तक उसके पीछे आई, असद पेट पकड़े सर झुकाए कराह रहा था। ज़ैनी ने आओ देखा ना ताओ झाड़ू से चित्रोल कर दी, मगर अफसोस झाड़ू 1-2 बार ही असद को लगी थी, बाकी तो उमर के दिल पर जख्म दे गई थी। इस भागम दौड़ में ज़ैनी के घुंघराले घने बाल खुल गए थे और खुलकर उसके चेहरे पर आ गए थे। दादा जान लाउंज में आए। ज़ैनी को उमर की दुर्गत बनाते देख गरज चमक शुरू हो गई थी। ये मद मस्त हाथी बने कहाँ घूम रही हो? दफा हो अपने कमरे में। दादा जान उसका हुलिया देख कर गरजे। बिना दुपट्टे खुले बाल लिए घूम रही थी जब गुलाबो हाथ में पतीली लिए नाजिल हुई थी और ज़ैनी ने अपना सर पीट लिया था। ये देखें बाबा जी, ज़ैनी ने चाय का पानी रखा था चूल्हे पर और खुद यहाँ गुत्तम गुत्ता हो रही है। देखें पतीली की हालत, सारी साड़ दी है। अब मुझसे ना कहिएगा पतीली मांजने का, जिसने जलाई है वही धोए। गुलाबो दादा जान के मुंह के आगे पतीली करके बोली थी। इस मास्टर शेफ को चाय बनाने का किसने कहा था? हाँ लाडली, आज किस बेचारे को फूड पॉइजन करवाना है तुमने? दादा जान अपनी टोन में आ गए थे, अबरू उचकाकर ज़ैनी को घूर रहे थे। तोपों का रुख ज़ैनी की तरफ होता देख असद खिसक गया था और उमर बेबसों से देखने लगा। मुझे ये ऑर्डर आपके मास्टर शेफ ने दिया था। ये तो कमीने असद की वजह से मेरी चाय जल गई। और दादा जान, चाय से फूड पॉइजन नहीं होता, हाँ ड्रिंक पॉइजन जरूर होता होगा। वो अपनी जोन में बोलती जल्दी से भाग गई थी। टूटे हुए उमर की चाय तो भूल ही गई थी उसे। दादा जान तासुफ से सर हिलाने लगे। इस मास्टर शेफ के आगे पतीली रखो और उससे मंजवाओ, नहीं तो इस महीने की खर्ची बंद इसकी। दादा जान गुलाबो से बोले थे। गुलाबो अपनी बसीसी दिखाती सर हिलाकर चल दी। ज़ैनी कमरे में आई तो सांस चढ़ गया था, फिर कहका लगाकर हंस दी और जोहा को बताने लगी कि असद के धोखे में कैसे हाथ साफ किया है उमर पर। वैसे जोनिश इब्राहिम, रफाकत की वजह बताओ मुझे, इतनी नफरत, इतनी जड़ क्यों है तुम्हें उससे? जोहा आंखें चुदियार से देख रही थी। कोई एक हो तो बताऊं। मैं जानती हूँ कि अक्सर माँ बाप की भी किसी एक औलाद में जान बसती है, तो दादा जान को उमर इस्माइल पर फिदा रहना नहीं बुरा लगता मुझे, लेकिन उसकी वजह से जो फैसले वो करते हैं वो बुरे लगते हैं, उनसे चिढ़ होती है मुझे। वो आंखों में अंगारे भरे बोली थी। याद है तुम्हें, सिर्फ इसकी वजह से कई साल तक लोगों ने मुझे चढ़ाया है। मेरी जिंदगी के 14 साल मैंने एक अनचाहे नाम के साथ गुजारे, जो लोगों के लिए मजे का सामान था। उसकी आंखों में अब गुस्सा भराया था। जोहा ने बेचारगी से उसे देखा। सच ही तो कह रही थी। बेचारी जोहा तो हर कदम पर साथ साथ थी उसके, सब जानती थी, मगर ये उसकी दुखती रग थी। और अब वो शुरू हो चुकी थी। ज़ैनी अपनी हमेशा की सुनाई हुई दुख भरी कहानी, जो उनकी दादी अक्सर उन्हें सुनाया करती थी, वो दोहराने लगी। जब मैं पैदा हुई तो दादा जान वारी सदके गए थे मुझ पर। तब ये उमर साहिब बहुत छोटे से हुआ करते थे। चचा की गोद में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। दादा ने कहा, क्या नाम रखना है गुड़िया का? और उसने अपनी जहरीली जुबान खोली थी। आज़ादी आज़ादी, वो सामने रखे टेडी बियर की दुर्गत बना रही थी। ज़ैनी आज़ादी नाम तुम्हें उमर भाई ने दिया था, उसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? जोहा ने उसके हाथ से भालू छीन लिया। नाम? उसे तुम नाम कहती हो? सारी जिंदगी लोगों ने चढ़ाया मुझे,
कभी कोई कहता तुम 14 अगस्त को मिल जाओगी ना, कभी कहते थे हम लेके रहेंगे आजादी। अगर कोई 14 अगस्त को पैदा हो जाए तो इंसाफ कब कहता है कि नाम ही आजादी रख दो। भला इंसाफ कब तक इतना जालिम होता है। ऐसे तो लेबर डे पर पैदा होने वाले का नाम मजदूर और नौकरानी होना चाहिए था, और कश्मीर डे पर पैदा होने वाले का कश्मीर आजाद कश्मीर होना चाहिए था। ये हमेशा से जलता था मुझसे। मैं क्या दुनिया में आई, बेचारा जल जल कर भुन गया, इसलिए उसने मेरा नाम आजादी रखा, जबकि दादी चाहती थी मेरा नाम मलाइका रखें। मगर ये उम्र नामी बीमारी मेरी खुशियाँ खा गई। ये तो अगर मैं 14 साल बाद स्टैंड लेकर अपना नाम चेंज न करवाती तो अब तक कोई न कोई इस आजादी को ले ही जाता। वो जहरीले तासुरात लिए बोली। जोहा उसके दुख में बराबर की शरीक थी। भला ये क्या दुख है, लेकर नाम रख दिया आजादी। और वो याद है तुम्हें जब इसने मेरी टांग तोड़ दी थी, वो माजी में खोने लगी। वो सब मिलकर खेल रहे थे जब लॉन में रखे बड़े से ट्रैम्पोलिन पर उमर अकेला कूद रहा था। आजादी इधर आओ। ट्रैम्पोलिन पर वो हवा में उछलता हुआ बोला था और आजादी ने उसे घूरा था। आजादी की उम्र 14 साल थी। मेरा नाम आजादी नहीं है, जोनिश है, समझे तुम। वो वहीं झूले पर बैठी चिल्लाई थी। अच्छा आजादी, ओह जोनिश, आओ तो देखो कितना मजा आ रहा है। ऊंचाई से दुनिया ही अलग अलग लग रही है। वो मुसलसल उछल रहा था। जोनिश ने कहरआलूद नजर उस पर डाली, फिर ये सोचती हुई गई कि उसे एक जोरदार धक्का देगी। वो ट्रैम्पोलिन पर चढ़ गई। जोनिश के पीछे पीछे जोहा और उसे भी चढ़ गए और उछलने लगे। जब उमर ने उसे कहा था आजादी तुम यहाँ से करो जंपिंग, देखो बराबर वाली आंटी का टेरेस नजर आ रहा है, उनका कुत्ता आज टेरेस पर मौजूद है। उमर ने कोने की तरफ इशारा करके बोला। जोनिश को वो कुत्ता बहुत पसंद था, मगर यहाँ दादा जान की हुकूमत, और जब हुक्मरान जालिम हो तो आम आवाम अपनी मनपसंद की नहीं कर पाती, इसलिए वो बस देख देख कर ही खुश होती थी। वो जल्दी से दूसरी तरफ आ गई और उछलना शुरू कर दिया। 3-4 ऊंची जंप मारी तो वो मजीद ऊपर की तरफ जा रही थी, मगर कुत्ता न जाने कहाँ छुप गया था। 4-5 जंप और की थी उसने, अब के बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी, और जब वापस नीचे आई तो ट्रैम्पोलिन में मौजूद छोटा सा सुराख पूरा फट गया और आजादी मैडम अपनी दोनों टांगों समेत नीचे जमीन पर जा लगी थी। और हंसती खेलती आजादी की एक चीख बुलंद हुई थी और बाकी सब भी नीचे को गिरे थे, मगर वो जोनिश की तरह ज्यादा शौक न हुए थे, तो हाथ पांव सलामत रहे। हाय अम्मी जी, मेरा पाँव गया अम्मी। उसकी चीखें नहीं थम रही थी। उमर ने उसको सहारा देकर ट्रैम्पोलिन से उतारा। बाकी पलटन गायब हो गई थी, सब अपने अपने कमरे में छुप गए थे। और वो जैसे ही जमीन पर आई उसने दोनों पाँव पर वजन डाल दिया और चोट लगा पाँव सह नहीं पाया और एक तरफ को मुड़ गया। फिर तो जैनी की चीखें मजीद बुलंद हो गई। वो जो उसे धक्का देने का सोच कर गई थी खुद ही टूट फूट गई थी। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिर जाओगे। कुछ दिन पहले जोनिश ने ट्रैम्पोलिन में सुराख किया था उमर को गिराने के चक्कर में, और आज वो खुद भूल गई। सब भागे भागे आए। डॉक्टर पहुंचे तो मालूम हुआ कि एंकल बोन डिसलोकेट हो गई। उसकी टांग पर प्लास्टर की मोटी तह चढ़ा दी गई और अब तो आजादी का रो रो कर बुरा हाल था। वो दर्द से कराह रही थी। अगले हफ्ते बोर्ड के इम्तिहान थे। किसने कहा था उछलने को तुम्हें? अब पेपर कैसे दोगी? अम्मी उस पर गुस्सा कर रही थी। जोनिश ने कमरे में जमा लोगों में से अपने दुश्मन को तलाशना चाहा और फिर फट पड़ी। उमर की तरफ उंगली करके बोली, इस उमर मनहूस ने कहा था उछलने को। मैं तो अपना झूला झूल रही थी। हाँ, इसने ये जान के किया है अम्मी, ताकि मैं फेल हो जाऊं। वो रोते हुए बोल रही थी। इल्जाम मत लगाओ बेचारे उमर पर कि तुम्हारी बोटी कोई चैन नहीं आजादी इब्राहिम। दादा जान ने फौरन उमर का दिफा किया था। मेरा नाम जोनिश है, सुना आपने? जोनिश जोनिश जोनिश। आजादी नाम की बीवी लाइएगा आप अपने इस बेचारे उमर की। जोनिश चीख चीख कर अपने नाम पर जोर देकर बोली थी। बस एक ही आपका लाडला है। हमेशा की शिकायत एक बार फिर दोहराई। हाँ, मगर आज से तुम भी हमारी लाडली हो। वो मुस्कुराए। बस बस रहने दें ये झूठा दिखावा। आप जिससे आपको मोहब्बत है बस उस तक ही रखें, मुझे नहीं चाहिए ये दोगली मोहब्बत। वो फट पड़ी थी। उसकी बदजुबानी पर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। अम्मी ने उसकी टुंडी टांग नहीं देखी थी। दादा से बदतमीजी करने पर हर बार की तरह उस बार भी जोरदार थप्पड़ लगाया था। और जोनिश इब्राहिम जो पहले ही ट्रोमा में थी, एक जोरदार थप्पड़ के पड़ने से बेहोश हो गई थी। आजादी आजादी, क्या हुआ आजादी?
दादा जान लपक कर उसके पास आए थे। उसका चेहरा थपकने लगे। ताई की अपनी हवाइयां उड़ गई थी। घर में एक नया हंगामा छा गया था। क्या जरूरत थी इसको हाथ लगाने की तुम्हें ताहिरा? अगर मेरी बच्चे को कुछ हुआ तो देखना तुम। दादा जान गरजे थे। वो उसका सर सहला रहे थे। उनका अपना रंग जर्द पड़ गया था और जोनिश जो आंखें बंद किए ड्रामा कर रही थी, दादा जान की हालत पर शर्मिंदा हुई। मगर फौरन ही उमर की नफरत ने उस शर्मिंदगी पर गलबा पा लिया था। बाबा मैंने तो बस हल्के से हाथ ही लगाया है, क्या हो गया इसे? ताई भी रूहान सी हो गई और आजादी साहिबा जो झूठ मूठ का बेहोश हुई थी, अब दादा के बिलक बिलक रोने पर परेशान हो गई थी। किसी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे थे और उसने ये ड्रामा खत्म कर दिया। झुरझुरी लेकर आंखें खोल दी। बस वो दिन था। उसके बाद कभी उस पर किसी ने हाथ ना उठाया। टांग टूटने के बाद वो मोहताज हो गई थी। उमर ने चच्चा के कमरे में रखी ऑफिस चेयर लाकर उसके आगे रख दी। ये तुम्हारी बैसाखी, इस पर बैठो और घूमो पूरे घर में, सारे काम करो। उमर ने चुटकी बजाकर कहा। वो कोई आइडिया दे और दादा जान को पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, उसको चेयर पर बिठाया गया और उमर साहिब ने उसको टूटी टांग के साथ खूब घुमाया। जहां उसने जाना होता वो चेयर पर बिठाता और घुमाता रहता, बल्कि सारे घर वालों के लिए तफरीह का सामान बना दिया उसे। पूरा 1 महीना कभी असद, कभी जोहा, कभी कश्यप अपनी तफरीह के लिए उसे घुमाते रहते। कभी कभी तो असद अपनी तरफ से कुर्सी को जोरदार धक्का देता था। सामने हसन खड़ा होता था, वो उसे कैच करता और फिर असद की तरफ कुर्सी धकेल देता। जोनिश इब्राहिम माजी में खोई थी, आंखों में अंगारे उबल रहे थे। याद है ना तुम्हें, मैं कहती थी कि मुझे इस कुर्सी से उतार दो, मगर सभी उस उम्र से मुत्तफिक हो गए थे और सारा दिन मुझे चकराए फिरते थे, जबकि उस वक्त मुझे आराम की जरूरत थी। लेकिन यहाँ किससे परवाह थी मेरी? लोग मशके सितम बनते हैं, इस जलील ने मुझे मशके तफरी बना दिया था। वो जलती बुनती बोली थी, लेकिन उसका बदला तो ले लिया था तुमने। उनकी ठोडी फाड़ कर पूरे 4 स्टिचेस आए थे उन्हें। जोहा ने अब्रू उचका कर बोला। वो जान के तो नहीं किया था, वो तो खेल खेल में हो गया था। जोनिश के चेहरे पर जरा शर्मिंदगी न थी। और वो याद है तुम्हें, जब संडे के दिन सुबह सवेरे उठा दिया था उसने मुझे और मैं तैयार होकर पहुंच गई थी नीचे, सब सो रहे थे और मैं समझी कि सब स्कूल चले गए। पूरे 1 किलोमीटर भागी थी मैं, फिर जाकर रिक्शा करके जब स्कूल पहुंची तो पता चला आज तो संडे है। वो दांत भींच रही थी। जोहा की हंसी निकल गई। उमर अल्लाह तुम्हें पूछेगा, जलील इंसान, वो उसको कोस रही थी। जोहा अपना रुख फेरकर अपनी हंसी कंट्रोल करने में नाकाम हो रही थी। कश्यप के फर्स्ट ईयर में पहली पोजीशन आई तो आज उसकी दावत थी, सब खुश थे। ये 85% पर कैसे तुम्हें पोजीशन मिल गई कश्यप? इसका मतलब पूरी क्लास ही नालायक है तुम्हारी। मेरे उम्र के तो पूरे 92% आए थे, मगर फिर भी दूसरी पोजीशन बनी थी। दादा जान तो तहय्युर से पूछ रहे थे। दादा जान अब खुश नहीं है। कश्यप का खुशी से दमकता चेहरा मानद पड़ गया। जोनिश ने बीच में छलांग लगाई थी। पूरा खानदान जमा था जब जोनिश की तेज तराज जुबान ने काटदार लफ्जों का इस्तेमाल किया था। एहे दादा जान, कहाँ की जहानत के गुण गाते रहते हैं आप? कहाँ का आइंस्टाइन है वो? क्या इजाद किया है इसने सिवाय आपकी फरमाबरदारियों के? इसने कहीं भी झंडे नहीं गाड़े। क्या है वो? कोई साइंसदान है, कोई किमियाई दान है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अपने झंडे गाड़े हैं इसने? एक आपके अलावा इसकी जहानत किसी को नजर नहीं आती। असल में आप इसे जहानत के ऐसे मैदान में भगा रहे हैं जहां मुकाबिल कोई नहीं। वो अकेला दौड़ा है और अकेले दौड़ने वाला हमेशा तन्हा रहते हैं, किसी नुक्ते पर नहीं पहुंचते। जोनिश इब्राहिम की दुखती रग उमरनामा सुनकर फड़क उठती थी। बस फिर जोनिश ने भी हिसाब बराबर कर दिया था। अंगूर खट्टे हैं, उमर बोला था। हाँ क्यों नहीं, उसने कंधे उचका दिए। तुम करती तो हो उससे मुकाबला, दादा जान भी जताते हुए बोले थे। मेरी जूती करती है उससे मुकाबला, मेरा इसका क्या मुकाबला भला? हम तो नायाब हैं, मिलने के नहीं। और वो बड़ी अदा से डट कर बोली थी जब उमर ने मुस्कुरा कर कहा था, बेशक। अच्छा, मैं इसकी जहानत के गुण नहीं गाऊंगा अगर तुमने इससे बेहतर पोजीशन ले ली तो। दादा जान ने उसे चैलेंज किया था और वो चैलेंज कबूल कर बैठी थी। आजकल वो दिन रात किताबों में सर दिए बैठी होती थी। यही गेम तो खेला था दादा जान ने, उसे चैलेंज कर दिया और बाकी तमाम खराफात से जोनिश इब्राहिम पीछे हो गई थी। बस किताबें
نمازیں اور کھانا، یہ 3 کام تھے آج کل اس کے پاس۔ زوہا کئی بار کہتی تھی چلو کچھ دیر ریسٹ کر لو، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتی تھی۔